Good afternoon, student. In previous video, we had discussed about King's choice. Okay, that point had finished in previous video. I shall send question with answer on your group. Don't worry about that. Now we shall discuss about our new chapter odd one in. Listen, you should prepare your question answer yourself, because you saw our timetable of first term on group. Okay, so you should prepare our question answer for exam and grammar also. Okay, we shall see our next point 1.2 और 1 in. इसका मतलब क्या होता है, जो ऐसे स्टूडेंट है, सपोज just consider there is 10 student and there one is very different from that 10. Okay, it's called odd one in, means 10 ऐसे स्टूडेंट है जो 10 में से 9 ऐसे स्टूडेंट है जो उसमें सिमिलरिटी है, पर 1 ऐसा है जो डिफरेंट है, तो उसे हम ऑड वन इन कहते हैं. मीन्स वो क्लेवर है या बहुत ही डल है, ऐसा कुछ उसमें कुछ ऐसे स्पेशलिटी होती है, इसकी वजह से वो अलग होता है. ओके, तो ऑड वन इन देखो, देयर इज 4 character in this story: Malti, Rima, and Rima's father, Mr. Sen, and Rima's mother. Okay, so let us start our chapter. How was the first day of school? Asked her mother as Rima sat down for dinner. Okay, actually every student went to school and learned something from school, and when that student came in his house, that time parents will ask to such type of question. Okay, how was the first day of school? So यहाँ पर भी जो रीमा नाम की जो लड़की है वो डिनर को बैठती है, तभी उसकी मदर उसको पूछती है, मदर आस्क्ड हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. मीन्स आपका स्कूल का जो फर्स्ट डे था वो कैसा था. इनवर्ट कॉमा है, डबल इनवर्ट कॉमा, ओके, इनवर्ट कॉमा और क्वेश्चन मार्क. Okay, so see proper proper punctuation mark. See proper punctuation mark, because different punctuation mark there is different meaning. Okay, so you should watch properly that punctuation mark. Okay, how was the first day of school? Question mark means that words indicate question or interrogative question. Okay, like where, when, how, which, who, whom, whose. Their words are WH words, and if this question start from that these words, and that words is interrogative sentence. Okay, so how was the first day of school? Asked her mother as Rima sat down for dinner. इस वहाँ पर रीमा नाम की जो लड़की है वो डिनर को बैठती है, तभी उसकी मदर उसको पूछती है कि आपका जो फर्स्ट डे है वो कैसा था. ओके, रीमा श्रद्ध, नो लेसन, जस्ट सिटिंग इन. ओके, there is many hard words in this chapter, so different type of words in this words. So I will tell you
what is the meaning of that particular words. So means raise the shoulder slightly to indicate doubt, ignores or disinterested. ओके मीन्स श्रग, मीन्स वहाँ पर वो जो रीमा नाम की लड़की है वो श्रग करती है और वो बोलती है नो लेसन जस्ट सिटिंग इन, मीन्स वहाँ पर कौन सा ऐसा लेसन नहीं हुआ था, हम खाली बैठे थे. एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास इंक्वायर हर फादर मिस्टर से. उसके जो फादर है उन्होंने इंक्वायर किया कि कोई न्यू गर्ल तुम्हारे क्लास में थी क्या. ओनली वन, मालती, ज़्यादा नहीं पर ओनली वन थी, उसका नाम मालती थी. एंड सी इज़ फनी ग्रेमेस रीमा एज ही हेल्प्ड हर सेल्फ टू द सैलड. ओके वहाँ पर वो सैलड लेते हुए बोली कि वो कैसी है, बहुत फनी है. वाई डू यू से दैट आस्क्ड मिस्टर सेन. मिस्टर सेन ने उसको पूछा कि आप उसे ऐसा क्यों कहते हो. शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट. स्निफ रीमा नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. ओके मीन्स वहाँ पर दैट रीमा टोल्ड what is the reason behind it. Okay, Rima told she is very poor in English, he can't speak English properly, and she has come in our school, she has come from another state in our school. Okay, and that Rima told naming one at the other end of the country. Okay, so means वहाँ पर क्या हुआ, जो रीमा नाम की लड़की थी उसने कहा कि वो इंग्लिश अच्छी तरह बोल नहीं पाती है और वो अलग स्टेट से आई है और उसने उस स्टेट का नाम बताया जो हमारे इंडिया मीन्स हमारे कंट्री में है. तो वहाँ पर एक वर्ड्स आया है फर्स्ट पैराग्राफ में ग्रीमेस, उसका मीनिंग है मेड इन अगली एक्सपीरियंस. यहाँ पर देखो ये वर्ड्स, तो इसका मीनिंग है made an ugly experience with the face to show pain और disgust. ओके और यहाँ पर एक वर्ड्स आया है स्निफ, तो उसका मीनिंग है हियर स्पोक विदाउट इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट. ओके मीन्स वहाँ पर जो रीमा नाम की लड़की थी वो किसी का रिस्पेक्ट करती थी नहीं, इंटरेस्ट किसी से इंटरेस्ट दिखाती थी नहीं, इसलिए वहाँ पर ये वर्ड्स यूज किया है स्निफ रीना नेमिंग वन एट अदर एंड ऑफ द कंट्री. ओके इस तरह वहाँ पर रीमा नाम की एक लड़की है. नेक्स्ट, ओह चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. ओह दैट मिस्टर सेन replied that oh these children are very clever at math. Okay, in who was come from that state. इस वहाँ पर उस स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत क्लेवर होते हैं स्पेशली मैथ में. ओके स्पेशली गुड एट मैथ, और जो किसी को कम मार्क मिलते हैं वो सब्जेक्ट बहुत हार्ड जाता है तो आपको क्या लिखना है पुअर एट मैथ. और गुड एट मैथ का मीनिंग ऐसा होता है उसको अच्छे मार्क मिलते हैं और वो उस सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं. किसने बताया मिस्टर सेन क्वाइटली मिस कामली. नेक्स्ट, वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हियर बिंदी एंड ऑल, good morning teacher, mimicked Rima. Okay, that Rima told her father and mother about that Malti. Okay, her name is Malti and he is not a clever girl. Oily hair. She described about Malti. Oil hair, bindi and all, and good morning.
टीचर मिमिक रीमा। मीन्स वहाँ पर वो ऐसी मीन्स किस तरह प्रोनाउंसिएशन करती है ऐसा उन्होंने बताया, मिमिक्री की उसकी। ओके, और वो बोले कि वो ऐसे स्मार्ट वगैरह नहीं, क्लेवर वगैरह नहीं, वो ऑयली हेयर है उसकी, बिंदी है, और ऑल जो डिस्क्रिप्शन था उसने बताया। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे doted on her, but she could be insufferable at times. Okay. Oh, this is a very difficult condition for every student, because don't judge to other student, to ourselves, or particular student with particular student. This is very dangerous. Okay, and that realize that Rima's friend, Rima's parents, oh, and her parents exchange glances. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक उसके फादर और मदर ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक्सचेंज ग्लांसेस किया। मीन्स कुछ ऐसे उन्होंने ऐसी चीज़ उनको समझ में आ गई कि ये कुछ ज़्यादा मिस ओवर कर रही है, जो भी मालती नाम की लड़की है उसको वो कम समझ रही है। ओके, एंड उनको ऐसा लगा कि रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, मीन्स हमको एक ही लड़की है और उसे हमने बहुत लाड़ प्यार से संभाला है, बट सी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम। ओके, इनसफरेबल एट टाइम, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अनोइंग एंड अनप्लेजर मोर देन वन कैन टॉलरेट। ओके, तो इस तरह वो लड़की है। नेक्स्ट, डू होप यू and your friends will not make things too difficult for Malti son. ओके, तो वहाँ पर उसके जो फादर है, उसके फादर ने बोला कि मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके जो फ्रेंड है वो मालती के साथ कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट बर्ताव नहीं करने का, जो उसकी जो प्रॉब्लम है डिफ़िकल्ट है और उसकी आगे डिफ़िकल्ट कंडीशन मत बनाओ और उसके साथ अच्छा रहो, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, मालती साइन। नेक्स्ट, मिस्टर सेन एज रोज फ्रॉम द टेबल, मीन्स वो टेबल से खड़े होते हुए ऐसा कहा और उन्होंने बोला कि आप उसके सामने कुछ डिफिकल्टी मत खड़े करो, आप और आपके फ्रेंड। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, मीन्स एक्चुअली दैट रीमा एंड हर गैंग डिस्कस्ड अबाउट दैट कंडीशन और अबाउट दैट मीन्स डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, मीन्स वो जो पॉइंट था जिसने रीमा के फादर ने बताया कि आप उसके सामने कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी मत लाओ जो वो प्रॉब्लम आ सके, उसको प्रॉब्लम आ सके। तो वहाँ पर उन्होंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसको क्या करना है। मीन्स दैट रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, मीन्स उसी तरह करना है, उसको परेशान करना है, उसको डिफ़िकल्टीज लानी है, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती इंटर द क्लास। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती इंटर द क्लास, दे ऑल कोरस गुड मॉर्निंग। ओके, मीन्स वहाँ पर जो अगले दिन वहाँ पर जो मालती की एंट्री हुई तब वो सभी के सभी चिल्ड्रन उसको जो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन उससे होता था वैसे ही उसकी मिमिक्री करने लगे। पुअर मालती शी डिडंट रियलाइज दैट दे वीआर मेकिंग फन ऑफ हर, शी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाई गुड मॉर्निंग। मीन्स वहाँ पर जो पुअर मालती है उसे हाँ, जो पुअर मालती है, अब यहाँ पर जो पुअर वर्ड्स है वो पुअर मालती, इसका मीनिंग वो स्टडी में कैसी है ये नहीं बताया कि बेचारी मालती ऐसे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किया है, तो वो वहाँ पर उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ फन कर रहे हैं, ऐसा उसको समझ नहीं आया और उसने पीछे देखा और गुड मॉर्निंग ऐसा रिप्लाई दिया। ओके, अब हमारा फर्स्ट पेज हो चुका है। सेकंड पेज,
सेकंड पेज, शहनाज giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. और शहनाज ने रूडली से पूछा, Why do you put so much oil on your hair? मीन्स आपके जो हेयर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऑयल आप क्यों मिस यूज़ करते हो, ऐसा उसने पूछा. मालती लुक्ड ऑफेंड बट डिड नॉट रिप्लाई. मीन्स वहाँ पर उसको जो मालती थी उसको वहाँ पर जो वर्ड्स शहनाज ने यूज़ किया था तो उसे बुरा लगा, पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया. ओके, कोई भी रिप्लाई उसने नहीं दिया. और कोरस का मतलब क्या होता है? मेनी पीपल सेइंग द सेम थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम. और बीम, BEAMED, बीम का मतलब क्या होता है? स्माइल हैप्पीली. ओके, डोंट फॉरगेट दैट पॉइंट. नेक्स्ट, मालती and the skirt so long, the skirt so long, said Claire catly. उसकी ये जो सेकंड फ्रेंड्स थी उसने भी कहा कि उसकी जो स्कर्ट है वो कैसे सो लॉन्ग, ऐसा उन्होंने कहा. मालती पूछ रहा था प्लस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन, स्किन, फेस और ETC बिकम रेड एंड हॉट. प्लस शी वॉज अबाउट टू से समथिंग वेन टीचर इंटर. मीन्स वहाँ पर वो अब क्या हो गई थी, उसको गिल्टी फील हो रहा था, तो वहाँ पर वो रेड हो चुकी थी, बिकम रेड एंड हॉट. ओके, तो वहाँ पर अब कुछ ना कुछ तो वो रिप्लाई देने वाली थी. तभी क्या हो गया? टीचर इंटर. मीन्स तभी टीचर आ गए. एज द क्लास progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. मिस यहाँ पर क्या हुआ? ऐसा कुछ हो गया कि जब भी क्लास स्टार्ट हो गया तभी सभी को सरप्राइज हो गया. क्यों? क्योंकि जब भी जो टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो उसका आंसर कौन बताता था? मालती बता देती थी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर. ओके, तो सबको ये क्या हो गया? मिस द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वाज सरप्राइज. इसलिए सबको ये सरप्राइज लगा. टू सी मालती रेज हर हैंड्स व्हाट एवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन. ओके, व्हाट एवर टीचर आस्क्ड क्वेश्चन मालती गेव करेक्ट आंसर. दैट्स व्हाई दैट ऑल स्टूडेंट शॉक्ड और सरप्राइज. यस मालती, यू आंसर योर आंसर. यस मालती योर आंसर सेड टीचर. बस टीचर भी कह देते कि मालती आपका आंसर बताओ. मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन. मीन्स दैट टीचर रिकग्नाइज दैट मालती इज वेरी क्लेवर गर्ल. ओके, एंड मालती आंसर करेक्टली ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, एंड द टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन. मीन्स वहाँ पर जो मालती ने जो भी आंसर बताती थी वो करेक्ट बताती थी, और इसीलिए जो टीचर थे उनको भी वो अच्छा लगता था और उसे वो अच्छा कहते थे. व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल. ये जो कंडीशन है अभी कहाँ पर हम आ चुके हैं? रीमा के घर में. अब रीमा ने यह बात घर में बताई तो वो उसकी जो मदर है उन्होंने कहा साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल. मीन्स वो कैसी है? क्लेवर गर्ल है, अच्छी गर्ल लगती है. व्हाट इज द यूज सेड रीमा अनचैरिटेबल हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस. ओके, मीन्स वहाँ पर वो जो रीमा नाम की लड़की है वो बोली व्हाट इज द यूज. मीन्स उसका क्या यूज है? उसकी अनचैरिटेबल हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस. अनचैरिटेबल का मीनिंग क्या होता है? अनकाइंडली और अनफेयरली. ओके,
और एट्रोसियस का मतलब क्या होता है? ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटीज, वेरी बैड, मीन्स उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत बुरी है, बहुत बैड है, ऐसा उन्होंने कहा। द सेम में बी सेड ऑफ योर हिंदी। ओके, द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर मिस्टर सेन sharply. He was getting quite sick of Rima attitude. ओके, मीन्स वहाँ पर क्या हुआ? तुरंत किसने मिस वहाँ पर फर्स्ट किसने रिप्लाई दिया? यहाँ पर नाम दिया है मिस्टर सेन, उन्होंने शार्पली वहाँ पर रिप्लाई दिया, जिस तरह आपकी हिंदी क्या है, जिस तरह आपकी हिंदी में आप पुअर हो, मीन्स अच्छे आपको मार्क नहीं मिलते, आपको अच्छी तरह बोलना नहीं आता, उसी तरह उसकी इंग्लिश कम है और वो पुअर है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमास एटीट्यूड, और उन्होंने उसकी जो माता पिता है और पेरेंट्स है, उन्होंने जो रीमा का एटीट्यूड है वो एटीट्यूड उन्होंने देखा था। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? द वे वन थिंक्स एंड फील्स अबाउट समथिंग। ओके,